Hi everybody, thank you for watching Sneha Tauri, and today's episode is going to be really knowledgeable. And guess what? We are actually going to cover the most important element of our life, and that is finance. आई नो हम सब लोग कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड से आते हैं जब हमें फिनेंस के बारे में या अकाउंटिंग के बारे में या टैक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कभी ना सही तरीके से नॉलेज मिल नहीं पाता, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, इसलिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस टाइम आई हैव वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द यूथ सिटी नागपुर. सो वी हैव CA Pawan Khabia sir with us, and today's episode is entirely going to be very beneficial for all of you, because अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, अगर आप कोई भी एंटरप्राइज रन करते हैं, अगर आपका छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस है, तो आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज दिस इज व्हाट you actually need to hear. So we welcome Pawan sir here Thank on you, the Sneha. sets of the Creative Thank you for Crossroads. calling me to the studio. Thank you very much. So how are you? कैसे हो आप? I am fine. I am कैसी fine. चल रही है लाइफ? How's It's- everything? It's going good. So- Nagpur is cool city. Nagpur Yes. is going to become hot now. Yeah. पर हमने आपके बारे में बहुत चीज़ें सुनी है. We also got to know that you have experience of more than 20 years Yes. into the stream, and you have experience in different industries. Yes. So it starts from infrastructure, steel, food processing, IT and ITES, I guess. Yes, And I think a lot of them. I'll still have to make out the list of it. But we really hope that this conversation goes deeper into the minds of business people. Yes. So let's start with it. So tell us something about you as a person. Tell us something about your journey. Yeah. So first of all, I thank you, Sneha, for calling me here for the benefit of all of you. So let me introduce myself. Yes. I am Pawan Khabia. I am founder partner of a CA firm. Mhm. We are a Nagpur headquartered CA firm, Vijay Varghese Khabia and Savji. Okay. And this July we are going to complete 10 years as a firm. Whoa. But professionally I qualified in 2003, so more than 20 years of experience Mhm. with me, professional experience. I qualified at the age of 22, one of the youngest CAs that time of the town. Wow. Now that record is break. But yeah, from the background I am coming, it is a big achievement for us. Correct. So as a chartered accountant firm, we do everything. We are having a team of 50 plus people in Nagpur. Perfect. And my specialized area in advising the businesses Mhm. on the taxation, auditing, and their loan consultancy, etc. Perfect. So during that process, I came and meet a lot of people, a lot of industries. So that's why I have a domain expertise for more than 2 decades in various industries in Nagpur and India also. Perfect. So tell us something about you. आपको CA क्यों बनना था? मुझे बनना ही नहीं था, क्योंकि बनना नहीं था इन द सेंस कि मैं जिस होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई एजुकेशन चॉइस नहीं थी. 12th के बाद करियर ऑप्शंस नहीं थे. तो यही था कि भैया 12th के बाद नागपुर जाना है. तो नागपुर जाना है तो ऐसी कौन सी एग्जाम है जहाँ आपको एंट्री बैरियर्स नहीं है, फीस कम है. Right. तो दैट CA वाज द चॉइस. सो मैं जो CA सिलेक्ट किया, इट वाज नॉट बाय द चॉइस, बाय द कंपल्शन. All right. Yeah. And then when you had actually opted for CA, तो क्या आपको ऐसा कुछ कभी फील हुआ कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बनी है? यस. सो जब मैं पढ़ाई करने लग गया, समझने लग गया, तो मुझे लगा कि ये फील्ड ये मेरे इंटरेस्टिंग का है और मैं आगे बढ़ते गया. जो एक बड़ा हर्डल था कि आई केम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड टिल 12th, और उसके बाद इमीडिएटली इंग्लिश बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गया. एंड दैट टू मैं 4 years में CA कंप्लीट किया, विच इज़ इन रिकॉर्ड टाइम. सो वो एक बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए. सो वो दैट ऑल्सो बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. ओके. तो जब आपको बताया गया कि ठीक है CA जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा कौन सा इमेज था आपके मन में वो फील्ड को लेकर? फील्ड को ये था कि भैया मैं CA बन जाऊंगा, अपने होम टाउन में आके प्रैक्टिस करूंगा और एक रेप्यूटेड आदमी रहेगा, रिकॉग्नाइज रहेगा. ऐसे ही मेरे मन में था जो है. तो आपके खून के अंदर बिजनेस day 1 से घूमता Yes, है? yes, yes. वो So at the age of 15-16, I was involved in my family business. Perfect. So जो CA करते करते भी वही चला जो है. तो यही था कि भैया खुद के लिए कुछ करना है, खुद की प्रैक्टिस करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है. इसी Nice. purpose से.
कैसा होता है पवन सर, मतलब क्योंकि मैं दिन रात जेनजीज के इनर अराउंड रहती हूँ, एंड क्योंकि करियर बोलो या एजुकेशन सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है विद इन द लास्ट 5 to 10 years, तो आज भी बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ पता नहीं है कि हम लोग हमारा करियर चूज़ कैसे करें। मतलब प्रॉब्ली वो एक रैट रेस में या एक हॉर्स रेस में घुसे हुए होते हैं कि ठीक है अब सब कह रहे हैं तो हम 11th-12th में ले लेंगे JEE या नीट, Yes. बट देन ऐसे कोर्सेज जैसे CA इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज अक्रॉस द Yes, ग्लोब, correct. आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ देम। तो ये आप कुछ थोड़ा सा अगर हम लोग एजुकेशन साइड में बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप यहाँ पे करियर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में लोगों को हाँ, बताएं? मैं 2-3 चीज़ें जो बताना चाहता हूँ व्हेन आई इंटरेक्ट विद पेरेंट्स ऑल्सो, कि सीए एक ऐसा कोर्स है 100% एम्प्लॉयमेंट। आपने कोई भी सीए को अनएम्प्लॉयड नहीं देखा होगा, ओके, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ, आपका पूरा कोर्स 3 से 4 लाख में हो जाता है एंटायर ड्यूरेशन। तो ओके, वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स, नो एंट्री बैरियर्स। ओके, आपको इवन इफ आर फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड विद 35% पास मार्क्स आपको भी एंट्री है सीए में। तो एंट्री बैरियर्स कुछ भी नहीं है, कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और अगर आप देखोगे जो सीएज है, तो यू कैन सी ए सीए फ्रॉम मेडिकल फैमिली फ्रॉम अ विलेज एंड डूइंग गुड वर्क इन देयर प्रोफेशनल फील्ड। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकेंडली, नो वन नीड्स टू बी एन मेरिट स्टूडेंट फॉर डूइंग, जो है एन कोर पर्सन कैन डू अ सीए। आई नो इवन माई सेल्फ, I am not more than 65% in class 10-12 from a Marathi background. I have few CA friends जो 10th में फेल होके भी CA बने हैं। वाओ, तो ये है कि इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड करियर चॉइस। एंड अभी समय के साथ इतने ज़्यादा इसमें स्ट्रीम्स आए हैं, तो यू कैन डू लॉट ऑफ वॉट एवर यू वांट, और पोस्ट CA भी यू कैन डू लॉट मेनी थिंग्स। तो दैट इज़ द मंत्रा Perfect. फ्रॉम माई साइड टू Perfect. एवरीवन। परफेक्ट। Yeah. सो थोड़े टाइम पहले ये सेम पॉडकास्ट सेट्स पे देयर केम अ लेडी, दिव्या मोहता, and she said that she is not a practicing CA, Yeah. but then she was always having this fear in her mind, not fear exactly, but उनके दिमाग में हमेशा थॉट चलता था कि यार मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें मेरा लाइफ एकदम मोनोटोनस हो जाए। मतलब सुबह 8 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 5 बजे निकलो, बस दिन भर वही काम करो। तो आपके लिए आपकी लाइफ, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर वेरी मच हैप्पी विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड दैट यू हैव चोजन? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मिसकंसेप्शन है कि मैकेनिकल लाइफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन एडवांटेजेस होता है, हर दिन हम कुछ नया करते हैं, नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए क्लाइंट्स मीटिंग करते हैं, क्योंकि हमको 100 बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। राइट, तो आई वर्क ऑन 100 केस स्टडीज एट अ टाइम। वो तो वो जो है कि इट इज़ नॉट अ टिपिकल 10 to 8 और मोनोटोनस थिंग। तो एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग फॉर अस, न्यू केस फॉर अस, न्यू प्रॉब्लम फॉर अस। राइट, सेकेंडली, विद द टाइम देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वेयर यू कैन वर्क फ्रॉम होम, और आप एक लिमिटेड 2 घंटा 3 घंटा भी काम करके आप सीए का प्रोफेशन को कर सकते हैं। एक यू कैन स्पेयर ओनली 2-3 आवर्स एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो वो भी एक पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है आई फील एक्साइटेड, आई मीट एवरी डे न्यू पीपल, इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल। सबसे बड़ा चीज है सीए में, यू गेट अ गुड रिकॉग्निशन, राइट, यू आर वेल रिस्पेक्टेड अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द क्लाइंट। तो एक आपको उसका एक अलग ही मजा होता है। एक आप कोई फ्रेमवर्क बता सकते हो कि एक एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सी, फर्स्ट ऑफ रोल जो है, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बने तो जो है, हम जो हमको गवर्नमेंट ने एक थीम लाइन दी है कि पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक थीम होता है, गवर्नमेंट ने दिया है कि पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग। तो हमको राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, तो कोई भी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस हमको एडवाइस नहीं करना है क्लाइंट को, हमारे फ़ायदे के लिए और गवर्नमेंट के लिए लॉस के लिए रहे। तो फर्स्ट हमारा जो है कि रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस, रॉन्ग टैक्स प्लानिंग हमको प्रमोट नहीं करना है। फेयर एंड इथिकल आपको सोल्यूशन देना है, एडवाइसरी देना है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो जाए। तो हमारा जो हमको थीम लाइन को है, पार्टनर इन नेशनल बिल्डिंग का रोल निभाना है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसी फ्रेमवर्क में अगर हम रहे और क्लाइंट को प्रॉपर एडवाइस करें, उनको फेयर एडवाइसेस बताए, तो दे विल बी हैप्पी विथ यू। जब जिस टाइम पे आपने आपका ये बिजनेस शुरू किया था, या प्रॉब्ली क्या ये आपका फैमिली जनरेशन? नो, दिस इज आई एम द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट। तो जब आपने एक बिजनेस सेटअप किया था, हम लोग जब भी एक बिजनेस सेटअप करते हैं, वी नो दैट वी हैव टू गो थ्रू सम हर्डल्स एंड सम स्ट्रगल्स एंड सम चैलेंजेस। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो आप कभी नहीं भूलते हो?
चैलेंजेस ऐसा था कि जब मैं नागपुर में सीए करने आया था तो फर्स्ट टाइम आई सॉ द नागपुर, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को इंग्लिश का ए भी नहीं आता था यहाँ पे आने के बाद, और क्लासेस जब ज्वाइन करना था तो सब कुछ माहौल नया था, और होम टाउन से अलग रहना था। तब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो भी हम हॉस्टल्स में रहते तो उसका भी एक्सेस नहीं था। तो वो सब चैलेंजेस के साथ हमको नहीं पता था कि मैं ये कोर्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, अच्छे मेंटर्स मिले, अच्छे सीनियर्स मिले, अच्छे वेलविशर्स मिले। उन्होंने समय समय पे हमारा हाथ पकड़ के आगे साथ में हमको ले गए और मैं ये मुकाम तक पहुंच पाया। तो जो इनिशियल डे था व्हेन इन 1998 जब मैं नागपुर आया मेरे होम टाउन से, तो ये दुनिया पूरी नई थी मेरे लिए, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज 20-25 साल बाद इस पाथवे तक आ जाऊंगा, इस मुकाम पे आ जाऊंगा जो है। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड फॉर मी। जिस जिस टाइम पे आपने बिजनेस शुरू किया था, आज अगर आपको 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, सो लेट्स से 2003 आपका पास आउट था, राइट? यस, करेक्ट। 2003 से अभी तक के 2024 वी आर इनटू, सो ऑलमोस्ट 20 इयर्स। तो इस पूरे पीरियड में आपने क्या इवोल्यूशन देखा है बिजनेस इंडस्ट्री में? इवैल्यूएशन देखिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत हुआ है, तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। एक ही मंत्र है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए बिजनेसमैन, अगर हमने टेक्नोलॉजी का साथ नहीं लिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम चलते रह जाएंगे और दुनिया भाग रही है, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इवैल्यूएशन जो हुआ है, सबसे जो है, अगर हम टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमारी डिलीवरी कॉस्ट है, क्लाइंट को डिलीवरी करने की सर्विसेज, वो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो यू हैव एन अपर एज जो है, और आपको अच्छे टैलेंट को साथ में जोड़ के रखना है, वो एक जो समझ में आया हमको जो है। एंड सेकेंडली, जो अभी जो यंग जनरेशन आ रहा है, मतलब जो सेकंड और थर्ड जनरेशन होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। तो नॉट नेसेसरी कि वो अपने फादर का बिजनेस को कंटिन्यू उसी पैटर्न में करे, तो आपको उनके साथ भी कनेक्टेड रहना है। तो वो भी एक जो है, मैंने ये इवैल्यूएशन देखा है कि उनके साथ भी हमको जुड़े रहना है। Okay. Now, when we talk about startups, Pawan sir, there are a lot of startups opening up across the city. In fact, city की क्या बात करूँ, जब से Startup India launch हुआ है, तब से इंडिया में everybody, I mean most of the students have started imbibing themselves कि नहीं, हम लोग भी खुद का startup launch कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक फाइनेंशियल एडवाइसेस जो आप स्टार्टअप्स को देना चाहोगे? जी, तो पहले स्टार्टअप, ये जो कंसेप्ट है वो सबको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप एक जेनरिक वर्ड है, और गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। तो नॉट नेसेसरी एवरी बिजनेस क्वालिफाइज एज अ स्टार्टअप एज पर गवर्नमेंट्स बेसिकली नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन। आपका बिजनेस जो है, एक न्यू आइडिया जो और किसी ने कभी कॉपी नहीं की हो, या न्यू प्रोडक्ट जो कि आपकी लाइफ को इजी करता हो, आपकी प्रोसेस को इजी करता हो। अगर आप और किसी का ऑलरेडी प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो यू हैव टू बी ए वेरी यूनिक, आइदर इन द आइडिया और अ प्रोडक्ट और वॉट एवर यू प्रोवाइड। तो वो अगर आप रहते हैं तो यू आर कॉल्ड एज एन स्टार्टअप। और स्टार्टअप होने के बाद देन यू हैव लॉट मेनी बेनिफिट्स। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो यू गेट एन रिकग्निजेशन एज एन स्टार्टअप, एंड यू आर रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, यू गेट अ सर्टिफिकेट, देयर इज़ अ प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दिए हैं। देयर आर सर्टन टैक्स एग्जम्पशन टू द स्टार्टअप्स। फॉर दैट यू हैव टू रजिस्टर्ड विद द इनकम टैक्स वेबसाइट अंडर सेक्शन 1080 IAC, एंड आपका टैक्स जो है सर्टन ड्यूरेशन के लिए आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट मेनी अदर बेनिफिट्स। You get a fee waiver in the patent registration and all, and लोन को आपको प्रायोरिटी होती है। तो ये सब गवर्नमेंट ने काफ़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया है। उसके अलावा लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में। तो यू हैव सर्टन प्रेफरेंसेस इफ़ यू आर स्टार्टअप, और आपको कुछ फीस का वेवर होता है। तो आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करके मिल रहा है गवर्नमेंट से, और जो कि बहुत ही अच्छा है। और जो नए आइडियाज़ आते हैं उसको डाई डाउन नहीं होने दे और प्रॉपर नर्चरिंग मिले, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो जब भी हम लोग एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, बिकॉज हम लोग जितने भी हमारे फ्रेंड्स, अब मेरे भी सर्कल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका अपना खुद का स्टार्टअप है, तो बहुत बार ऐसा होता है पवन सर कि उनको ना, उनका आइडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, they really want to build something really great, but then they have this fear in their mind कि मेरे पास में पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब मैं स्टार्टअप को एस्टैब्लिश कैसे करूँ? तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन टू दिस? सी जो
आपका इनका प्री इंक्यूबेशन पीरियड है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आइडिया आ गया या आइडिएशन स्टेज है, तो इसके अभी काफ़ी सारे जो है आपको ऑनलाइन मेंटरिंग होती है, और जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे भी आपके मेंटर्स होते हैं। तो आपको जो है फंडिंग का कोई इशू नहीं, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स रेडी टू इन्वेस्ट इन द गुड आइडिया। आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और आपको एक प्रॉपर मेंटर मिलना चाहिए ये जो गाइड करने के लिए, जिसमें हमारा भी रोल आता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम ये सर्विसेज भी दे सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं प्रॉपर एलिमेंट पे कि आपको पिच डेक कैसे बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करना है, कितने इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करना है, आपने किस फॉर्मेट में कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, वेदर एज अ पार्टनरशिप फर्म और वेदर एज अ LIP और वेदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके प्रोज कॉन्स क्या है, कौन सी स्टेज पे क्या ठीक रहेगा, ये गाइड करना हमारा रोल होता है। तो यही इसमें सजेशन है मेरे साइड से जो है। ओके, अब ये जो भी आपने टर्म्स बोली है जैसे इक्विटी, अब जैसे हम लोग शार्क टैंक देखते हैं, तो जब तक के हम जैसे जनरेशन वाले लोगों ने शार्क टैंक नहीं देखा तब तक के हमको कभी पता ही नहीं था कि अच्छा इक्विटी एग्जिस्ट करता है या इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ है या कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है। बहुत सारे यंगस्टर्स आज भी ऐसे हैं जो बस just because they want to have their passive income or just because they want to put a chunk of their money into the investment side, तो वो लोग ट्रेड या स्टॉक मार्केटिंग ये सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली माई क्वेश्चन हियर इज कि अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर पाओ एक सिंप्लीफाइड वे में टू द एंटायर ऑडियंस कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, और कंपनी के टाइप्स कैसे कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टार्टअप को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपने पास एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखें, या एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प ले, ताकि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। तो शुरू से ही अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि आपका इक्विटी क्या है, तो इक्विटी इज़ नथिंग बट एन योर ऑनरशिप इन द कंपनी। तो जब आप किसी को अपनी इक्विटी बेचना चाहते हैं या डाइल्यूट करना चाहते हैं, उसका मतलब आप जो है कितना परसेंटेज आपका ओनरशिप कम करना चाहता है। सो दैट इज़ द बेसिकली आपकी टर्म्स जो है इक्विटी। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सभी ऑडियंस को बता दूं तो इक्विटी इज़ नथिंग बट योर ऑनरशिप इन द कंपनी। तो इफ़ यू आर अ 50% इक्विटी होल्डर्स, दैट मीन्स यू आर अ 50% ऑनर ऑफ द कंपनी। सो दैट इज़ बेसिक थिंग। सेकंड, आपने जो पूछा था कि वैल्यूएशन कैसे होता है, स्टार्टअप का वैल्यूएशन करने का जो मेथड होता है वो बाकी लोगों से जो है काफ़ी अलग होता है। अब स्टार्टअप जो होते हैं, मोस्टली स्टार्टअप आप देखेंगे 99% स्टार्टअप जो है इनिशियल फ्यू ईयर्स में लॉस मेकिंग होते हैं, इंक्लूडिंग आप जोमेटो देखेंगे, स्विगी देखेंगे, ओला देखेंगे, ऑल दे आर लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, स्टिल दे आर लॉस मेकिंग, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है कि फ्यू ईयर्स दे इनकर हेवी लॉस, और जब उनको वॉल्यूम मिलता है देन स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट की फिर कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि इट गेट्स मल्टीप्लाई विद द टेक्नोलॉजी। तो जो वैल्यूएशन होता है, अगर हम देखें नॉर्मल बिजनेस में अगर कोई लॉस है तो कोई भी वैल्यूएशन ज़ीरो देगा जो, लेकिन स्टार्टअप का वैल्यूएशन इतना इसीलिए आता है कि उनके फ्यूचर की क्या इनकम हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होता है। उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कि आपका फ्यूचर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस इनकम को बेसिस लेके किया जाता है। तो एक जो है ये बहुत अच्छा जो है तरीका होता है, लेकिन ये अगर आपने प्रॉपर एडवाइस नहीं लिया तो आपको जो है कोई आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1 करोड़ कर देगा, लेकिन अगर आप अनदर मेथड से जाओगे तो 10 करोड़ वैल्यूएशन आएगा जो है। तो दैट इज़ द बेसिकली वैल्यूएशन जो है। सिग्निफाई इसके लिए आपको यही है कि आपके बिजनेस का जो है रेवेन्यू मॉडल देना होगा नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स का। इसीलिए मैंने एडवाइस किया कि आप डे 1 से जो है अपने एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपने एडवाइस लेना चाहिए, ताकि यू गेट अ गुड एडवाइस एंड आप इन्वेस्टर के साथ अच्छे टर्म्स निगोशिएट कर सकें जो है। दैट वाज योर वन क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यू आस्क्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को इनिशियल काफ़ी R&D में इन्वेस्ट करना होता है, ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करना होता है, आपके इंक्यूबेशन सेंटर में इन्वेस्ट होता है, पीपल में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सो दिस इज प्रोटोटाइप में इन्वेस्टमेंट होता है। तो दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट डन, जिसको हम सीड कैपिटल भी बोलते हैं, तो डन बाय अ बिजनेस। तो ये सीड कैपिटल के लिए भी काफ़ी कुछ फंडिंग होती है गवर्नमेंट से या इंक्यूबेशन सेंटर से, या काफ़ी कुछ अभी कॉलेजेस भी करने लग गए हैं। तो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट इनिशियल मेड इन द बिजनेस।
जो होता है, तो यही आपने जो टर्म्स पूछे हैं मैंने काफ़ी इजी वर्ड्स में जो है Yes, सभी के लिए आज समझा मुझे भी दिया। समझ में आ गया तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ पूछनी है दैट अभी रिसेंटली मुझे एक इनवाइट आया था पलोटी कॉलेज से। तो पलोटी कॉलेज में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग फेस्ट होते हैं। तो दिस टाइम जस्ट बिकॉज शार्क टैंक का बूम बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उन्होंने एक ऐसी वेंचर ओपन किया, नॉट वेंचर बट एक इवेंट रखा जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी स्टार्टअप आइडियाज़ है यू गाइस जस्ट कम, यू गाइस पिच आपका जो भी स्टार्टअप आइडिया है, एंड देन प्रॉब्ली जो भी जजेस है, जो भी मेंटर्स है, जो भी शार्क्स है, वो आपको बताएंगे कि आपका लूपहोल क्या है उस बिजनेस मॉडल में और आपको किस तरीके से ग्रो करना है, वॉट। तो इस केस में बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स उस टाइम पे ऐसे थे कि हम लोग हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्च करेंगे या रजिस्टर करेंगे या हम लोग सोलो प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे। तो ऐसा कुछ आप कंपनी का डिस्टिंग्विश अगर आप बता पाओ। यस, तो बेसिकली कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस करने के लिए जो है देयर आर वेरियस बिजनेस व्हीकल्स या बिजनेस फॉर्मेट्स है, राइट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म एंड देन लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये चारों टाइप होते हैं, सभी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम बताएं तो मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट होता है आपका सोल प्रोप्राइटर, वेयर यू हैव योर बिजनेस इन योर ओन नेम। when more than two people are coming, then partnership का एक concept होता है। तो partnership and then there is a private limited company। तो जितना मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो simplest is the proprietorship firm, उसका रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है या कंप्लाइंस है। तो हर एक बिजनेस मॉडल का एनुअल कंप्लाइंस होता है, क्योंकि आपको टैक्स फाइलिंग करना है, रिटर्न्स फॉर्म करना है, कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, ऑडिट करना है। तो और लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनिशियल डेज में जो है आपको आप सोल प्रोप्राइटरशिप करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में रजिस्ट्रेशन में भी अच्छा होगा और उसके मेंटेनेंस है, उसके कंसल्टेंसी फ़ीस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट फीस है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगी क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो इसीलिए इनिशियल डेज में यू कैन गो विद द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्शन जो है काम वर्क नहीं करता है, क्योंकि जब आप इक्विटी वगैरह डाइल्यूट करना चाहते हो तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट जो है वो स्पेसिफिकली इज़ गिवन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसीलिए मैंडेटरी होता है एट अ सर्टन स्टेज। बट इनिशियल स्टेज में मैं इसीलिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद अगर आपका आइडिया सेल आउट नहीं हुआ तो उसको बंद करना वेरी कम्बरसम है। तो एक आप इनिशियल 1 और 2 साल जब तक आप स्टेबल नहीं होते, आप सोल प्रोप्राइटरशिप से काम करिएगा एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटीज़, वैल्यूएशन, तो ये सब जगह या स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, तब आप जाके ये सब चीज़ें करिएगा। अच्छा, डे 1 से क्या हमें अकाउंटिंग शुरू करनी चाहिए या सी इफ़ योर बिजनेस इज डू नॉट हैव दैट मच थिंग, तो कोई मैंडेटरी नहीं है अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के सर्टन नॉर्म्स है। तो आई थिंक एक्सेल बेस्ड थिंग इज़ बेटर। बट जो भी आप करें डॉक्यूमेंटेड रखें, उसको मेंटेन रखें, क्योंकि आगे जाके जब भी इन्वेस्टर आपको ये सब चीज़ें मांग सकता है कि अगर आपने बोला कि मेरा 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका अभी तक, तो ही विल बी नीडिंग द बेसिस कि आपने काय में इन्वेस्ट किया। तो कीप द रिकॉर्ड इन एक्सेल शीट विल वर्क इन इनिशियल डेज, क्योंकि ऑडिट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपके टर्नओवर एंड ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप डज नॉट मीट दैट थिंग। बट येस, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, देन अकाउंटिंग इज मैंडेटरी टू यू, because you have to file the income tax returns and submit the audited accounts and all. But if you are a sole proprietor, जैसे मैंने बताया, तो then not required. Fair enough. जब भी हम एक स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं, आपने कहा कि 99% स्टार्टअप्स फेल इनिशियल उनके 1 साल में, तो ऐसा क्या रूट कॉज है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है with respect to finances या with respect to accounting या with respect to their investment potential या उनका decision making with respect to finances, जिसके वजह से स्टार्टअप्स फेल होता है? स्टार्टअप जो फेल होने का जो मेन कंसर्न या रीज़न जो है, जो मैं अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से करता हूँ, कि उसका जो रेवेन्यू मॉडल है, बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं वो इमोशनल स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, कि वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं देखते उसमें, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता है। इन्वेस्टर ऑलवेज इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा, जिसमें वो प्रॉफिट के उसको स्कोप दिखेगा जो है, या आगे जाके वो ऐसा टेक बेस्ड स्टार्टअप है या कुछ है जो कि
काफ़ी रेवेन्यू ला सकता है। तो हमारे बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं दे आर जस्ट इमोशनल स्टार्टअप की मुझे आइडिया आ गया था, मैंने कंसीव किया था तो मुझे लाना ही है, बट दे डोंट सी कि वो सस्टेनेबल है क्या आइडिया और रेवेन्यू जनरेटिंग है क्या, वो नहीं देखते। तो दैट इज़ वन थिंग। तो इसीलिए जब हम कहीं आइडिया पिच करते हैं तो इन्वेस्टर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और देन यू आर अनेबल टू जस्टिफाई कि ये ऐसा क्यों है, ये मेरा क्यों जाएगा, मैं डाउन द लाइन 5 years में मैं कहाँ पे रहूँगा, ये बता नहीं सकता वो जो है। तो इसीलिए एक फेल होने का कारण वो है। सेकेंडली जो है एक है कि इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपने जो है अब आपको बजटिंग करना होगा। आप इन्वेस्ट करते जा रहे, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा 2 साल में 3 साल में पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, मैं कुछ कर पाऊंगा। आपको कहीं ना कहीं हार्ड डिसीजन लेना होगा। यू हैव टू सेट द डेडलाइन कि यस 1 year जहाँ तक मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज मैं ये सस्टेनेबल नहीं कर पाऊंगा, या मैं किसी को बिजनेस भेज दूंगा या इन्वेस्टर लाऊंगा इसमें जो है। थर्ड है कि स्टार्टअप के एक्सपेक्टेशंस आर वेरी मच अनरीजनेबल। कुछ केस में सभी को लगता है कि मेरा बिजनेस जो है 10 करोड़ का 20 करोड़ का वैल्यूएशन आना चाहिए, क्योंकि ये हाइप हो गया है। लेकिन दे हैव टू बी अ वेरी रियलिस्टिक जो है कि क्या उस बिज़नेस में उतना पोटेंशियल है क्या, क्योंकि इन्वेस्टर अपने एंगल से देखेगा कि वाई आई शुड इन्वेस्ट इन दिस, क्या ये मुझे हैंडसम रिटर्न देने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग इन अ आइडिया विच इज़ करेंटली नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग। तो जस्ट वो फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब भी उसकी रिस्क ज़्यादा रहेगी तो ही विल एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न। तो उसके भी एंगल से हमको बहुत बार सोचना होगा जो है। तो हमने बहुत बार डील निगोशिएशन करना है या इन्वेस्टर्स लाना है, तो इस समय हमको बहुत रियलिस्टिक होके करना होगा जो है। So now Pawan sir, I really wanted to ask because अभी recently I was looking to some news, तो उसमें there was a lot of information about MSME Development Act which came in 2006. तो please elaborate something about it क्योंकि वो बहुत complex था। Yes, I understand. मैं चाहूँगा सभी ऑडियंस को कि ये बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट MSME मीन्स एंड हाउ इट विल हेल्पफुल टू यू इन रनिंग योर बिजनेस, और फिर उसका स्टार्टअप से क्या कोरिलेशन है और हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट ने जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम। और उन डिवीज़न करने के बाद उनको कुछ प्रोटेक्शंस दिए हैं, कुछ उनको रूल्स बना है जिससे उनको काफ़ी हेल्प होगी, जो मैं एलिब्रेट करूँगा। सबसे पहले माइक्रो क्या होता है, मीडियम क्या होता है और स्मॉल क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो जैसे कि आप वर्डिंग जानते हैं माइक्रो, तो एनी बिजनेस हैविंग अ टर्नओवर बिलो 1 करोड़ विल बी कॉल्ड एज एन माइक्रो, ठीक है। और एनी बिजनेस हैविंग अ टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ बट बिलो 5 करोड़ विल बी कॉल्ड एज एन स्मॉल, और एनी बिजनेस हैविंग टर्नओवर अबव 5 करोड़ बट बिलो 50 करोड़ विल बी कॉल्ड एज एन मीडियम। तो ये टर्नओवर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है आपके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ के नीचे है तो क्या होगा, 10 करोड़ के नीचे है तो क्या होगा, या 50 करोड़ के नीचे है तो क्या होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार आपका बिजनेस जैसे भी क्लासीफाई हो जाता है, सॉरी रिटेक करना पड़ेगा, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको माइक्रो, तो माइक्रो मीन्स एनी बिजनेस हैविंग द टर्नओवर बिलो 5 करोड़, ठीक है। देन होता है स्मॉल, तो एनी बिजनेस हैविंग द टर्नओवर बिटवीन 5 करोड़ टू 50 करोड़, और मीडियम इज एनी बिजनेस हैविंग द टर्नओवर बिटवीन 50 करोड़ टू 250 करोड़। तो ये तीनों एंटरप्राइज को जो है गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्ट के अंदर लाया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे बेनिफिट दिए हैं और कुछ लॉ में प्रोटेक्शन दिया है। पहले अगर हम बेनिफिट की बात करें तो दे हैव एन एडवांटेज इन गेटिंग द बैंक लोन, ठीक है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फर्स्ट थिंग। सेकेंडली बैंक की एक प्रायोरिटी लेंडिंग होती है, तो प्रायोरिटी लेंडिंग में उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो एक ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट होता है कि दे गेट अ कोलैटरल फ्री लोन, मतलब विदाउट गारंटी और विदाउट सिक्योरिटी।
तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, CGTMS करके स्कीम है, जिसमें अप टू 5 करोड़ दे कैन गेट द लोन इफ़ दे आर रजिस्टर्ड अंडर द GST एंड ऑल। और जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए 10 लाख तक मुद्रा लोन की फैसिलिटी है। उसके अलावा जो है अगर आप पेटेंट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो है फीस वेवर है अप टू 75%। थर्ड जो है, अगर आप कोई गवर्नमेंट के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कोई ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसकी पार्टिसिपेशन फीस आप MSME डिपार्टमेंट से रियम्बर्समेंट करवा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी कुछ बेनिफिट है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने एक मैंडेट लाया है MSMED एक्ट के अंतर्गत कि आपको MSME को विद इन 15 days to 45 days में पेमेंट करना है। इट इज़ डिपेंड अपॉन वेदर यू हैव अ रिटर्न कंडीशन और ओरल कंडीशन। अगर आपने कोई कंडीशन नहीं दिया तो 15 डेज में आपको पेमेंट करना है, एंड इट कैन इफ़ इट इज़ अ रिटर्न मैक्सिमम 45 डेज में आपको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो MSME को तो आपको 3 times ऑफ द बैंक इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है। अब जो है आप बोलेंगे कि सर ये तो प्रोविज़न है बट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक MSME समाधान करके पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पे आपको अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा है विद इन द टाइम या इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो यू कैन गो एंड रेज योर कंसर्न्स एंड जनरेट एन कंप्लेंट। एंड वो कंप्लेंट एक लीगल केस की तरह रूप लेता है, जिसमें आप खुद ही कर सकते हो, कोई आपको एडवोकेट की वगैरह ज़रूरत नहीं है। एंड वो एक कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह गवर्नमेंट ने अपने फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, एंड यू गेट अ एडवांटेज, और आपको विद इंटरेस्ट पैसे गवर्नमेंट इंश्योर करता है पेमेंट करने का। ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि ऐसा कोई पोर्टल एग्जिस्ट करता है। तो MSME समाधान नाम से पोर्टल है। हर MSME बिजनेसेस को जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो तो टेक दैट, बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी। और इंश्योर कि यू आर, बिकॉज देयर आर 3 कैटेगराइजेशन, आइदर यू कैन टेक एज एन मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस प्रोवाइडर और अ ट्रेडर। तो आप करेक्ट क्लासिफिकेशन से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, उसको हर साल अपडेट कराइएगा, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा जो है। परफेक्ट। MSME और स्टार्टअप्स को हम लोग, क्या स्टार्टअप्स भी MSME का यस, पार्ट है? तो बेसिकली देखिए आप कि एवरी स्टार्टअप विल फॉल अंडर द MSME। अगर गाइडलाइंस मैंने जो बताया था टर्नओवर बेस्ड, अगर कोई भी स्टार्टअप का टर्नओवर अगर 5 करोड़ के नीचे है या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे है तो वो माइक्रो करके कहलाएगा स्टार्टअप। और एल्स अगर 5 करोड़ से ऊपर है और 50 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो स्मॉल करके कहलाएगा। तो एवरी स्टार्टअप विल कैन बी कवर्ड अंडर द MSME एक्ट। ठीक है, तो इसके कारण उनको नेचुरल बेनिफिट जो MSME को है वो हर स्टार्टअप को मिल जाएंगे। तो मेरा स्टार्टअप कम्युनिटी से यही निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजनेस को एज अ MSME करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। MSME रजिस्टर्ड करने के लिए कोई भी आपको गवर्नमेंट को फीस नहीं पे करना है, एंड देर इज़ नो नीड टू हायर अ कंसल्टेंट, इट्स सो ईजी। ठीक है, तो बहुत, हाँ जी। सो देर इज़ एन MSME रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो आप वहाँ पे जाना है। व्हाट यू नीड, जस्ट एन आधार कार्ड एंड अ स्टैट्यूटरी आपकी फर्म का फॉर्म, आइदर यू हैव टू बी अ सोल प्रोप्राइटर और अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी। तो इस फॉर्मेट में एज ए इंडिविजुअल यू कैनॉट टेक अ MSME रजिस्ट्रेशन। तो इंडिविजुअल नाम से कोई अगर पीच कर रहा होगा, एज अ स्नेहा टावरी यू कैनॉट रजिस्टर, बट अगर आपका ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है और यू हैव एनी फर्म लाइक द या academy, so and then you can registered under the MSME Act, which will help you and recognize you, give the upper age to you everywhere. Everywhere, yeah. ऐसा कोई मिथ जो लोगों को MSME के बारे में नहीं पता है या आपको क्लियर करना है या लोगों का मिसकंसेप्शन है? हाँ, सबसे पहले तो जो मिसकंसेप्शन जो लोगों का ये है कि MSME जो है ये जो है इसका टर्नओवर क्राइटेरिया ही लोगों को नहीं पता कि कौन रजिस्टर्ड ले सकता है। दूसरा मिथ ये है कि क्या हम एज अ ट्रेडर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं। स्नेहा टावरी एज अ आर्किटेक्ट ऑल्सो कैन टेक द रजिस्ट्रेशन। पवन खावी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो कैन टेक द रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अ डॉक्टर और हॉस्पिटल ऑल्सो कैन टेक द रजिस्ट्रेशन। तो उसमें कोई भी मनाही नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी फीस नहीं है, कोई कंसल्टेंट की नीड नहीं है। सो एक ये मीथ है।
सेकेंडली जो मीथ है कि हमको राइट जो दिए हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना नहीं पता, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर आपको ऑनलाइन है, एमएसएमई समाधान पोर्टल है, तो वो आप जो है जाके आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पोर्टल के थ्रू अपनी रिकवरी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल यूज़फुल पोर्टल है और बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेट होता है। इवन यू डोंट नो नीड एनी लॉयर टू रिकवर यू मनी इफ़ यू आर एमएसएमई, तो टेक एडवांटेज ऑफ दैट पार्ट। थर्डली आपके लिए कुछ एडवाइस है, अगर आप एमएसएमई बिजनेसेस है, आप इंश्योर करेगा कि आपका एमएसएमई उद्यम नंबर आप अपने बिल पे प्रिंट करें। आप अपनी कैटेगरी बिल पे प्रिंट करें, वेदर यू आर अ माइक्रो और अ स्मॉल और अ मीडियम, एंड इंश्योर कि आपका क्रेडिट पीरियड आप 15 डेज 30 डेज 45 डेज जो भी देना चाहते हैं वो भी आप प्रिंट करें। तो इससे क्या होगा कि जो आपसे वेंडर है आपका, जो आपसे परचेस करता है, आपकी सर्विसेज लेता है, तो उसको पता है कि एमएसएमई नीड्स द प्रायोरिटी ओवर द लोन, एंड आपको इंटरेस्ट मांगने का हक है। अगर ड्यू डेट में पेमेंट नहीं होता है तो वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। और दूसरा जो मीथ है कि क्या मैं गवर्नमेंट से भी इस पेमेंट की रिकवरी कर सकता हूँ, यस। अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट है या उनसे कुछ ड्यूज है, उसके लिए भी आप एमएसएमई एक्ट को इन्फोर्स करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन का बंच था जो सारे स्टार्टअप्स को पता होना चाहिए, Yes. जो अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है। Yes. But that's why this podcast was all about. So I hope each and every one of you is watching this video right now must be having a clear set of idea कि एमएसएमई क्या होता है, फिनेंसेस क्या होते हैं, स्टार्टअप्स के लिए फिनेंसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी, इक्विटी, कंपनी वैल्यूएशन, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड वंडरफुली। बट हर पॉडकास्ट एक रैपिड फायर के बिना अधूरा है, तो वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रैपिड फायर फॉर आवर टुडेज गेस्ट सीए पवन खापिया। सो सर, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। परफेक्ट। तो ये पूरा जो भी है रैपिड फायर, दिस इज ऑल इन लाइन विद द टॉपिक दैट वी हैव हैड। तो लेट्स गो फॉर इट। और क्योंकि ये रैपिड फायर तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, ओके? सो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, योर क्विक पिक फॉर स्टार्टअप्स एंड व्हाई? Private limited. एंड व्हाई? Because it has certain tax advantages and you can easily introduce the investor, dilute your stake very easily. Perfect. One accounting software you swear by for startups? Zoho. Zoho, okay. The first financial term a startup founder should learn is? Equity, cash flow. Perfect. Angel investor or venture capital, which one for early funding? Angel. Okay, and why? Because the VCs or venture capitalists have very detailed requirement which the initial startup will not be able to meet. So they will not be able to take up the very small startups. Okay. List in 3 words the financial documents every startup must maintain. MSME registration status, a pitch deck, Okay. and a financial control either in a Zoho accounting software or in a Excel sheet. Fair. अब मुझे ऐसा लगता है कि एक हमें अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा फॉर पिच डेक। Yes. बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो और प्रॉफिट, व्हाट इज मोर क्रूशियल इन 1 year? Cash flow. Okay. The ideal time to start accounting, pre-launch or post-revenue? Since inception. Okay. Top tax saving tip for new entrepreneurs? Do maintain your all the expenses accounting properly because most of the startups will not have the profit in the coming year. So nothing but do register and take the benefit all the government schemes. क्योंकि जैसे मैंने बताया few startups gets the tax exemption for 3 years continuous out of the 10 early years. तो वो प्रोसेस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने पहले ही एडवाइस किया था कि आपको हैंड होल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट साथ में ज़रूर रखना है। ओके। और अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपको सच में कोई जेन्युइन फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए, तो वी हैव वन हियर। मेक श्योर दैट यू गो एंड टेक मेंटरशिप फ्रॉम सीए पवन खापिया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो भी स्टार्टअप यहाँ सुन रहे हैं एंड दे वांट एनी काइंड ऑफ फ्री एडवाइस, free consultation, referring the name of Sneha for the benefit of the listeners. So I am there to give one meeting and one mentoring free to them. Thank you. ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब Icing on the cake for everyone. हाँ, exactly. So the next question is, name one financial metric that investors love. Cash flow. Okay. Yeah. Quick tip on how a startup can attain MSME status. Just it is an online process. Everyone can do it. You need to have an Aadhaar. Okay.
The percentage of revenue to set aside for emergency funds. Ideally, it should be your 2 to 3 months running expenses. Okay. Bootstrapping, brave or risky? Risky. Filing GST monthly or quarterly for small startups? Quarterly. When is the right moment to consider an IPO? It's too early to talk on that part unless and until your idea is not settled Right. and your revenue, your business or balance sheet should be in the positive cash flow generating, and it should be sustainable. Okay. Yeah, so maybe I can say it may take a decade or a 15 years for a startup to come at a IPO stage. Alright. If you see the Zomato, they have just recently last year they have came. Maybe they in the operation since more than 10 years. So it may take a time. Fair. Yeah. Okay. One big financial no for new startups. They should use good softwares and take the benefit of AI in everything. That is from Okay. my side. The easiest way to understand a balance sheet. As I told you, hire a good consultant and interact with him a lot. He will make your job easy. Perfect. Common misconception about startup finances. It said that the loss-making startup don't get the funding. That is not the thing. The investor invest on your idea, not your on the revenue stream. Okay. One habit that keeps a startup finances healthy. You have your own equity or seed capital. Don't rely on the third-party finances for initial years. Okay. Should startups outsource accounting or keep it in-house? If it is taking your substantial time, then you should, because otherwise you will not focus on your idea. Right. So it's a very small thing. You better it is outsourced. Okay. Yeah, Again, hiring a financial consultant maybe. yeah. I suggested one should have a mentor, financial mentor from the day one. Okay. Okay. The first step to take when a startup's expenses are too high. Try to minimize it and review whether you need to continue with the idea or not. Okay. Fine. Credit line or business loan, which is the better one for the cash flow management? Business loan. Okay. MSME registration's top benefit in one word. Priority over payments and priority in loan. One piece of advice that you would like to give CA aspirants. CA is everybody's cup of tea. Mm-hmm. So don't think ki, I cannot do it. Everyone can do it. Perfect. And one financial advice that you would like to give for every budding startup. Have some good investments. Don't invest or spend everything you have on your ideas. Fair. And the last but the most important question of the rapid fire, one word about the Sneha Towry. Ever smiling. Yeah. Thank you. Thank you. So everybody who's watching this video right now, here we go. You have got bunch of information about finances, about startups, about MSMEs and about what not. Oh my God, ये सारी information वो है जो probably Indian education system में कभी नहीं दी जाती, और जब तक आप किसी expert financial consultant के साथ ना बैठो तब तक शायद आप कभी इन सब important इन चीज़ों के बारे में ना समझ पाओ. हमेशा मुझे मेरे पापा कहते थे कि स्नेहा, फिनेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम कितना भी पीछा छोड़ो पर वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी. आखिरकार हमारा पेट इतना सा होता है, पर इस इतने से पेट को भरने के लिए इतना सारा कमाना पड़ता है, और वो इतना सारा कमाने के लिए इतना सारा मैनेज भी करना पड़ता है, और वो मैनेज इन लोगों के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता. So make sure that you like, share and subscribe the entire video. You go and have a wonderful conversation and a wonderful networking session with CA Pawan Khabi episode. It was really great. Keep supporting, stay tuned, because a lot of business podcasts are on the way, and make sure that you grow, boom and network more. Thank you. Thank you very much.